Wiggle, wiggle. like Wiggle, wiggle. Hi guys, this is Priyal and this is my channel Study with Priyal. So guys, this is my very first video and I'm really excited because obviously this is my first experience. So guys, I have taken my topic circulatory system. तो the question is कि मैंने इससे ही सबसे पहले क्यों लिया circulatory system. Obviously it is from bio and I am a biologist. Okay, तो हम बस टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करेंगे. तो आज की वीडियो में हम सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं एंड आई होप आपको इससे कुछ मदद मिले. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, circulatory system. So guys, before starting we should know what is circulatory system. What is the function of circulatory system? So circulatory system is transportation, means वो ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है जो हमारे बॉडी में सब्सटेंसेस होते हैं, लाइक हमारे ऑक्सीजन, हमारा वेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट में आ जाता है. वैसे ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट में कार्बन डाइऑक्साइड, इन सबको हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने में कौन हेल्प करता है? सर्कुलेटरी सिस्टम. तो दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू आउट अ बॉडी. ओके गाइस, so next, circulatory system is made up of three parts. First is blood, second is blood vessels, third is heart. Okay guys, then in this video we will firstly learn about blood vessels. So let's get started. Blood vessels are of three types, that are arteries, vein and capillaries. Okay guys, so the main thing of these blood vessels are, in this picture you can see the red colored blood vessel is artery and it carries oxygenated blood, means pure blood. And in this picture you can see the blue colored vessel, which is vein. It carries deoxygenated blood, which is impure blood. And the third blood vessel, that is capillaries, which is mainly the diffusion of artery and vein. Capillaries mainly help in exchange of substances like nutrients, oxygen and carbon dioxide. So we get to know that arteries carry pure blood, veins carry impure blood and capillaries are for exchange of substances. Okay, we will see some differences between these two blood vessels, that is artery and vein. So guys, there are differences between arteries and vein. Okay, so first difference you can see, arteries carry blood away from the heart and veins carry blood towards the heart. So what it means, see, artery कौन सा ब्लड कैरी करते हैं? प्योर ब्लड. ओके, सो प्योर ब्लड को वो हार्ट से पूरे बॉडी पार्ट्स में ले जाती है. सो व्हाट इट इज डूइंग, वो ब्लड को हार्ट से दूर ले जा रही है. ओके, अवे from the heart. And now coming to vein carry blood towards the heart, means वो deoxygenated blood को पूरे body part से collect करके heart तक ले जाती है. So what it is doing, it is carrying blood towards the heart. Okay, so first point is very easy, you can understand it very easily. Now coming to second point, blood under high pressure in arteries, okay, and in veins blood under low pressure. Now see what happens, हार्ट आपका कहाँ होता है? बॉडी के ऊपर की साइड होता है, यू कैन से अपर साइड होता है बॉडी के. तो आर्टरीज जब ब्लड को हार्ट से पूरे बॉडी पार्ट्स में ले जाती है, हार्ट जो है आपका वो अपर साइड में बॉडी के, ओके, इन द चेस्ट एरिया. तो जब आर्टरीज वहाँ से प्योर ब्लड ले जाती है पूरे बॉडी पार्ट्स में, तो वो कहाँ जाती है? डाउन डायरेक्शन में, थोड़ा जैसे डाउन डायरेक्शन में जाती है. लेग्स, हैंड्स, स्टमक, सब जगह देने के लिए डाउन डायरेक्शन में जाती है. तो नीचे जा रही है, तो कोई भी जैसी चीज़ होती है, अगर वो जैसे पानी है, अगर नीचे गिरेगा प्रेशर से, नीचे गिरेगा किसी चीज़ में, तो उसमें बहुत हाई प्रेशर लगेगा. ओके, सो यही होता है ब्लड के साथ आर्टरी में, वो ब्लड हाई प्रेशर में जाता है. ओके,
एंड इन वेन्स में ब्लड नीचे से ऊपर आता है, और कुछ जो लाइक हेड से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है हार्ट में, तो वो ज़्यादा नीचे नहीं है, वो ज़्यादा डाउन नहीं है. ओके, यू आर अंडरस्टैंडिंग. वेन्स में क्या होता है, नीचे से ब्लड जाता है और थोड़ा सा ऊपर से, तो उसमें अब कोई चीज़ नीचे से ऊपर जा रही है तो उसमें प्रेशर कम लगता है. ओके, तो इसलिए ब्लड में लो प्रेशर लगता है वेन्स में. नाउ कमिंग टू third point, that is arteries have thick walls. Now what is the reason behind this? And veins have thin walls, patli walls, and arteries ki moti walls. Okay, now I told you in the second point that arteries goes under blood in arteries goes under high pressure. Okay, because वो नीचे जाता है तो high pressure लगता है. तो अब किसी चीज़ में हाई प्रेशर लग रहा है, अगर आप पाइप से बहुत हाई प्रेशर में वाटर फ्लो करोगे देन वो फट सकता है. अगर वो पतला है, वॉल्स पाइप की पतली है, अगर वो थिक होगी तभी वो नहीं फटेगी. इसलिए आर्टरीज की वॉल्स भी थिक होती हैं ताकि वो फटे नहीं. ओके, नाउ इन वेन्स दे आर थिन बिकॉज लो प्रेशर लग रहा है, उन्हें थिक वॉल्स की ज़रूरत नहीं है. दे आर सेटिस्फाइड विद द थिन वॉल्स. ओके, नाउ सी नेक्स्ट, आर्टरीज हैव पल्स फ्लो एंड वेन्स हैव स्मूथ फ्लो. आप कभी भी अपने हाथ पे लाइक नस पे हाथ रखते हो, ओके, फील करने के लिए. देन जो जिस नस पे आप हाथ रखते हो वो होती है आपकी आर्टरी. ओके, लाइक आप अपनी वेस्ट हैंड की वेस्ट पे फिंगर रखी, चेक ना your like blood flow. तो आपको एक मतलब थोड़ी देर में से एक जर्क सा फील होता है, लाइक बिल्कुल ऐसे जर्क सा फील, लाइक कि स्मूथ नहीं हो रहा है, आपको कंटिन्यूसली फील नहीं हो रहा है, वो आपको थोड़ी देर में फील हो रहा है. ओके, लाइक 1 सेकेंड में, तो एक जर्क में फ्लो हो रहा होता है आर्टरी में ब्लड. तो दैट इज कॉल्ड पल्स फ्लो. मीन्स स्मूथ नहीं है, वो जर्क मीन्स रुक के ऐसे फ्लो हो रहा है. ओके, इन आर्टरीज ब्लड ऐसे ही फ्लो होता है. ओके, एंड इन वेन्स देयर इज अ स्मूथ फ्लो. ओके, मीन्स रुकता नहीं है ब्लड, स्मूथली फ्लो करता है. ओके, नाउ कम टू आर्टरी. narrow lumen. Artery has narrow lumen. See what is narrow. See in the picture, this is narrow lumen. In arteries you can see there are thick walls, so the lumen is narrow. पतला lumen narrow है, कम means पतला है. And in the veins, see there are thin walls, so see the lumen is wide. Okay, बड़ा है lumen veins का. Okay, now coming to our second last point, that is no valves. सी आर्टरी में फ्लो कैसा होता है, डाउनवर्ड फ्लो. ओके, तो उसमें बैक फ्लो होने का कोई चक्कर ही नहीं है. वाल्व्स क्या करते हैं, बैक फ्लो को तो प्रिवेंट करते हैं. तो अब आर्टरी में नीचे ब्लड नीचे फ्लो हो रहा है, तो बैक फ्लो की कोई मीन्स हो ही नहीं सकता बैक फ्लो. दैट्स वाई आर्टरी में कोई वाल्व नहीं होता है. बट इन वेन्स केस ब्लड अपर डायरेक्शन में फ्लो होता है, तो दे नीड वाल्व टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड. ओके, सो सारे पॉइंट्स एक दूसरे से जुड़े हैं. ओके, सो प्लीज फोकस ऑन एवरी पॉइंट. नाउ द लास्ट पॉइंट, ब्लड रिच इन ऑक्सीजन. आर्टरी में जो ब्लड कैरी करती है आर्टरी, वो ऑक्सीजन में रिच होता है, एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी. I will told you what is pulmonary artery, but you have learned that arteries carry oxygenated blood except the pulmonary artery, because pulmonary artery carries deoxygenated blood. Okay, and veins carry blood which is poor in oxygen, means deoxygenated blood. Okay, but the pulmonary veins carry oxygenated blood. Okay, and this you will be knowing nicely of pulmonary artery and pulmonary vein in my next video. So for now you should understand till here that pulmonary artery carry deoxygenated blood and pulmonary vein carry oxygenated blood.
blood. We'll talk about aorta, which is the largest artery of the body. Okay, so now what is aorta? Aorta is the largest artery of the body. What is its function? It carry oxygenated blood. See, the pure blood जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है, पूरा जब हार्ट पंप कर लेता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्योर ब्लड में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, तो फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड, और फिर एओर्टा लेफ्ट वेंट्रिकल से उसे ले जाती है पूरी बॉडी के पार्ट्स तक. वो जो एओर्टा लार्जेस्ट है वो ब्रांचेस में हो जाती है और फिर वो सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को. So this is the main function of aorta. Okay, now coming to coronary arteries. Coronary arteries. As we all know that all organs need oxygen to do work. They need energy to do work, so they need oxygen. And heart also needs oxygen to do work. So the arteries which supply oxygenated blood to heart, they are called coronary arteries. So there are two parts of coronary arteries also, that are right coronary artery and left coronary artery. Right coronary arteries supply oxygenated blood to right side of the heart, and left coronary arteries supply blood to the left side of the heart. So it was very easy. Now coming to vein. Vein, I have explained you everything about vein, that it is that it have thin walls, it blood flow at low pressure. There are two large veins that are called vena cavas, superior vena cava and inferior vena cava. Okay, so we will learn what is superior vena cava. सुपीरियर वेना कावा आपके हाथ के ऊपर होता है सुपीरियर वेना कावा, और इंफीरियर वेना कावा नीचे होता है. ओके, सुपीरियर वेना कावा क्या करता है, जो भी मतलब जो शॉर्ट वेन्स, जो स्मॉल वेन्स होती हैं, वो बॉडी के अपर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती है और सुपीरियर वेना कावा में डाल देती है. ओके, देन ये सुपीरियर वेना कावा का खत्म. फिर उसके बाद जो इंफीरियर वेना कावा होता है, जो स्मॉल वेन्स होती हैं नीचे की साइड बॉडी के लोअर एंड मिडल पार्ट में, जो स्मॉल वेन्स होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करती है, इम्प्योर ब्लड कलेक्ट करती है और इंफीरियर वेना कावा में डाल देती है. अब ये सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा, ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों किस में डिपॉजिट कर देते हैं ब्लड को, राइट एट्रियम में. तो सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा, ये दोनों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और इम्प्योर ब्लड को राइट एट्रियम में डिपॉजिट कर देते हैं. तो इन दोनों का काम भी खत्म. ओके, नाउ कमिंग टू कैपिलरीज. ओके, so at the beginning I told you what is capillaries. They are like a diffusion. They are diffusion of arteries and veins. Okay, and they are very thin. They have very thin walls. Okay, so capillaries are very extremely thin blood vessels, and they form network connections between arteries and veins. Okay, as you can see in the diagram, that exchange of gases and nutrients are taking place between blood and cells through capillaries. Okay, ब्लड एंड बॉडी सेल्स के बीच में एक्सचेंज किसके थ्रू हो रहा है, कैपिलरीज के थ्रू हो रहा है. कि बॉडी सेल्स है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में जा रहा है और ब्लड में से ऑक्सीजन बॉडी सेल्स में जा रहा है, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स बॉडी सेल्स में जा रहे हैं. बॉडी सेल्स से CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड आपके ब्लड में आ रही है कैपिलरीज के थ्रू. ओके, तो ये एक्सचेंज किसके थ्रू हुआ, कैपिलरीज के थ्रू हुआ. ओके, सो नाउ वी अंडरस्टैंड दी three blood vessels that are artery, vein and capillaries. Arteries carry oxygenated blood, then our veins carry deoxygenated blood, and capillaries help in exchange of substances. Okay guys, so now coming to our second topic, that is blood. Okay guys, now coming to blood. If you guys have studied in earlier classes tissue topic, then you know that blood is a connective tissue, okay, that help in transportation of various substances. As we earlier talked that it helps in transportation of gases like oxygen, CO2, nutrients. So blood, वो blood में तो थी ऑक्सीजन CO2, तो
ब्लड हम ब्लड हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन में सब्सटेंसेस की. दैट इज़ वेरी क्लियर. ओके, सो ब्लड इज मेड अप ऑफ लिक्विड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा. एक लिक्विड सब्सटेंस होता है ब्लड में. ओके, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा. ओके, तो अभी हमारा जो प्लाज्मा होता है उसमें हमारे ब्लड सेल्स आते हैं, बिकॉज ब्लड इज मेड अप ऑफ 3 टाइप्स ऑफ सेल्स, दैट इज RBC, WBC and platelets. What is RBC? RBC is red blood cells, WBC is white blood cells, and your platelets are platelets. So we will talk about these 3 cells one by one. So first coming to RBC, that is red blood cells. Okay, you can see red blood cells name is red. What its color? Its color is red. Why? Because उसमें एक pigment होता है that is called hemoglobin. Okay, RBC में एक pigment होता है that is called hemoglobin, which helps in hemoglobin की वजह से ही red color मिलता है RBC को. Okay, now what is function? RBC का function क्या होता है? अब देखो RBC में क्या प्रेजेंस है? हीमोग्लोबिन. और हीमोग्लोबिन क्या करता है, जो RBC के थ्रू ही जैसे गैसेस ट्रांसपोर्ट हो पाती है, वेसल्स में, जो ब्लड वेसल्स थी उसके अंदर RBC तो थे, जो ब्लड था वो रेड ब्लड सेल्स ही थे, RBC था, तो वो किस में हेल्प कर रहा था? गैसेस के ट्रांसपोर्टेशन में, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इनके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा था. तो RBC helps in transportation of gases. And why it can transport gases? Because it has a pigment called hemoglobin which helps in transportation of gases. Okay guys, अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा हो अभी तक तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लो, मैं आपको सारे डाउट क्लियर कर दूँगी आपके. ओके गाइज, तो नेक्स्ट कमिंग टू WBC. WBC white blood cells. WBC its function is it helps in like providing immunity. बॉडी को ये इम्यूनिटी देता है. इट हेल्प्स टू फाइट अगेंस्ट डिसीजेज और एनी अदर जो फॉरेन बॉडीज़ होती है और हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं हमारे बॉडी के लिए, उन सब से WBC फाइट करता है. इट मीन्स दैट इट गिव्स इम्यूनिटी टू आवर बॉडी. ओके, नेक्स्ट इज प्लेटलेट्स. इट हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ अवर ब्लड. लाइक हमें कभी भी कुछ लग जाती है, ओके, तो हमारा लाइक हाउ कैन आई टेल, जैसे आपको नील सा पड़ जाता है, वहाँ ब्लड क्लॉट हो जाता है. ब्लड क्लॉट हो जाता है तो उससे ब्लड ज़्यादा बहता नहीं है. तो प्लेटलेट्स का काम यही होता है कि ये ब्लड को क्लॉट करने में मदद करता है. सो टिल नाउ अभी तक हमने ब्लड वेसल्स पढ़ लिया है एंड अब हमारा हार्ट बचा है. तो एज एवरीवन नोज, हार्ट इज़ अ वेरी बिग टॉपिक एंड मुझे उसमें बहुत टाइम लग जाएगा करने में, आपको समझाने में, बिकॉज इट्स नॉट अ वेरी स्मॉल टॉपिक. उसमें सब कुछ आता है हार्ट में. ओके, एज वी कैन अंडरस्टैंड. तो हार्ट मेरी नेक्स्ट वीडियो में आएगा, तो तब तक आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी एंड आपको इससे हेल्प मिली अपनी स्टडीज़ में, क्योंकि स्कूल तो बंद है, ऑनलाइन स्टडीज़ चल रही है, बट ऑब्वियसली ऑनलाइन में नेटवर्क कनेक्शंस एंड ये सब की प्रॉब्लम आती ही रहती है. तो यूट्यूब पे भी इसलिए लोग वीडियोस देख देख के भी पढ़ रहे हैं. तो आप प्लीज़, अगर आपको मेरी वीडियोस से मदद मिली हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ. एंड मैं और किस किस टॉपिक्स पे आप मेरे से वीडियो चाहते हो, जैसे बायो में ही या किसी और सब्जेक्ट में, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता दो. मैं आपके लिए वो ही वीडियो बनाऊँगी. ये सारी न्यू वीडियोस एवरी संडे आती है, तो आप मेरी हर संडे न्यू वीडियो आएगी, उसे आप चेक कर सकते हो. एंड आपको जो भी कमी लगती है मेरी वीडियो में, लाइटिंग और एनीथिंग, बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट एंड आई हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है, तो थोड़ी मिस्टेक्स तो होंगी. तो आप मुझे प्लीज़ करेक्ट करो मेरे कमेंट सेक्शन में. एंड प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज आई नीड लव एंड सपोर्ट ऑफ योर्स टू ग्रो माई चैनल एंड टू ग्रो माई स्किल्स, टीचिंग स्किल्स. ओके, थैंक यू गाइज. बाय. मीट यू इन माई सेकेंड वीडियो जिसमें हार्ट का एक्सप्लेनेशन होगा. थैंक यू गाइज. बाय बाय.